चलो, so today I am teaching you the how to generate the formula related to probability and some more facts related to probability, and then we'll begin today the exercise as possible, which I am thinking so. ठीक है, तो सबसे पहले we are going to discuss two terms. ठीक है, two terms I will be discussing today with you, which are oftenly used. It will be used by my like by me also, and by using formula or whatsoever we will be doing, we will be using these two terms again and again. That the first word is outcome, and second one will be the favorable. These two words will be used by me many times. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what do you understand by the word outcome. Outcome, ठीक है, when you toss a coin and you get two of the conditions, one you get either head or you get tail, so this head and tail are the both outcomes from tossing. The numbers can be 1 to 6, absolutely. So here the condition which I gave you this time, it was that if you throw a dice, what outcome you get. So either you can get 1 or you can get 2, you can get 3, 4, 5, 6. Out of these 1 से लेकर 6 तक के numbers में से you can get anything. So remember, आप जो conditions मैं अभी बता रही हूँ, जो किसी भी event को करने के बाद हमें मिलता है, that is called outcome. ठीक है, किसी भी चीज को करने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने में क्या होता है, या तो दो ही आउटकम होते हैं, या तो आप पास हो जाओगे और या तो आप फेल हो जाओगे. उसके अलावा तो कोई कंडीशन होगी नहीं, either you will pass or you will fail. So these are called outcome. ठीक है, these are called outcome. Favorable, the word favorable comes from the word favorite. ठीक है, अब now can you tell me what do you mean by favorite? को पसंद हो, the word which you like, the thing which you like, it becomes your favorite automatically, है ना. फेवरेट उन चीजों को बोला जाता है जो आपकी पसंद के होते हैं, जो आपकी इच्छा के होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना. हो सकता है आपकी क्लास में 10 बच्चे बोल रहे हो कि ये वाला लड़का जीतेगा या ये वाला लड़का पास हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर आप हो ये इन 10 लड़कों की तरफ नहीं जा रहे हो, आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि नहीं ये वाला लड़का पास होगा, जो शायद जिसके लिए कोई भी लड़का क्लास का फेवर ना कर रहा हो. So the thing which you like is just become your favorite or favorable. ठीक है, so favorable word represent that what you like or what you want, especially what you want, है ना. what you like to do, what you like to have that thing. ठीक है, तो यहाँ पर favorable का मतलब ये हुआ. So remember, if you throw a dice, there are 6 condition can come. Like it can come 6 outcome. You can get 1, you can get 2, you can get 3, you can get 4, you can get 5, even you can get 6. So it means there are 6 outcomes. 6 conditions में से कोई भी condition आ सकती है. But what is your favorable condition? If your winning is just depending on number 3, so your favorable condition is only 3. ठीक है, मतलब आपकी favorable condition वहां पर केवल 3 है. You don't matter 3, you don't matter 4, you don't want 5, you don't want 6, you don't want even 1 or 2, you only want 3. But जरूरी तो नहीं है 3 ही आएगा, but 3 is your wish. ठीक है, 3 is your wish, 3 is your favorable condition. So remember, the outcome in dice condition will be 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. But what you want, what is your favorable condition, that is only one, that is 3. You want 3. So remember, the formula of probability becomes, remember सबसे पहले तो हम word P for probability. Now probability is always taken out from an event. आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको, जो इंट्रोडक्शन शो किया था. प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इवेंट की निकाली जाती है, क्योंकि इवेंट से क्या होता है, हमें एक सर्टन आउटकम मिलता है. ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकाली जाती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of favorable. The word favorable जो अभी मैंने समझाया आपको, number of favorable outcomes upon number of outcomes. This is the formula for probability. Okay,
नाउ आई एम गिविंग यू सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल कैसे निकाला जाता है प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि सपोज यू आर थ्रोइंग अ डाइस एंड यू आर नोइंग व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम. मैंने आपको क्वेश्चन दिया दैट व्हाट इज the probability. I have written the word probability के लिए only P. What is the probability of getting an even number in throwing a dice? ठीक है, suppose this is a question for you. What will you do in this case? सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि एक डाइस को थ्रो किया जाता है. ठीक है, जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है. तो बेटा जब भी हम थ्रोइंग अ डाइस वर्ड बोल रहे हैं तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे पास आउटकम कौन कौन से आएंगे जब हम डाइस को थ्रो करेंगे. तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. इट मीन्स देयर कैन बी 6 आउटकम्स. यहाँ पर टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज. नाउ ये तो हो गए टोटल नंबर आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल 6. 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है. नाउ इट इज टेलिंग वी वांट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. हमें क्या चाहिए, वी वांट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. वी वांट फेवरेबल कंडीशन दैट इज इवन नंबर. एंड इवन नंबर कहाँ है हमारे पास, इवन नंबर हमारे पास 2 है, इवन नंबर हमारे पास 4 है, इवन नंबर हमारे पास 6 है. लाइक हमारे पास 1 इवन नंबर नहीं है, वी हैव 3 इवन नंबर. तो हमारे पास कोई भी इवन नंबर आएगा चलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कौन सा इवन नंबर, दे ओनली वांट इवन नंबर. तो इवन नंबर मेरी फेवरेबल कंडीशन हुई और मेरे पास 3 जो नंबर है वो इवन है. तो आई कैन हैव एनी नंबर. तो यहाँ पर अब हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लिखेंगे PE इज इक्वल टू, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन. कितनी फेवरेबल कंडीशन है, 1 2 3. देयर कैन बी 3 फेवरेबल कंडीशन फॉर मी अपॉन नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वर 6. नाउ 3 अपॉन 6 को जब हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू 1/2. Because remember whenever we solve the answer of probability either we'll write in the form of fraction or we will write it down in the form of decimal. So decimal के लिए तो कोई simplest form की जरूरत नहीं होती है बेटा, लेकिन जब हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फ्रैक्शन में लिख रहे होते हैं तो हमें फ्रैक्शन को हमेशा simplest form में लिखना चाहिए. So here the answer will be coming 1/2 concept. ठीक है, अगर मैंने आपको बोला किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो ना इवन नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2. अभी जैसे हमने बताया आपको ऑड नंबर के लिए निकाल करके, तो यहाँ पर याद रखिए दोनों को मिलाकर हमेशा आंसर आता है 1. एक और एग्जाम्पल शो करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि किसी भी एक कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया गया. एक कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया गया और 151 टाइम्स हेड आया. 151 टाइम्स हेड आया. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हाउ कैन यू डू इट. 151 टाइम्स हेड आया था तो 151 हमारी फेवरेबल कंडीशन हुई अपॉन कितनी बार टोटल उछाला गया था, दैट वाज 200 टाइम्स. So remember, getting head, the probability will be 151/200. ठीक है, और आपको मैंने बोला कि हेड कितनी बार नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए. जो हेड आया नहीं जितनी कंडीशन में, तब आप क्या करोगे, अगर हेड नहीं आया होगा तो क्या आया होगा, जाहिर सी बात है टेल ही आया होगा, क्योंकि 2 ही आउटकम होते हैं, या तो हेड या तो टेल. तो हेड जो है वो 151 टाइम आया, तो टेल कितनी बार आया होगा, 49 टाइम्स आया होगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 49/200. ये हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ये हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ना आने की मतलब क्या होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी. और हमेशा याद, मैंने आपको बताया ये हम जब जितनी बार इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा. नाउ यू कैन सी ऑल्सो 151/200 प्लस
49 अपॉन 200 एंड दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 200 अपॉन 200 एंड जब आप 200 अपॉन 200 को सॉल्व करेंगे you will only get it 1. This is the probability PE is equal PE plus P dash E is equals to 1. That the statement which I have written on the board, किसी भी event के होने की probability plus that same event के ना होने की probability will always be equal to दी थी वो 2 कॉइन की दी थी. आप खुद से सोचो, आप अपने घर में 2 कॉइन लो और दोनों को उछाल लो, ठीक है, एंड यू कैन सी कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं दोनों कॉइन को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो. ठीक है, या तो दोनों ही हाथों में जो कॉइन है दोनों में हेड आएगा, ये हो सकता है, या दोनों में ही टेल आए, ये भी हो सकता है, या एक में हेड आए, पहले नंबर वाला जो आपका कॉइन है हो सकता है उसमें हेड आए और दूसरे वाले में टेल आए, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए और दूसरे वाले में हेड आए, ये भी हो सकता है. तो देयर कैन बी 4 कंडीशंस दैट वे जब आप एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस करते हो. ठीक है, so these are the possible outcomes when you toss do it. ठीक है, I have a bag of many balls and this bag contains almost variety of different colored balls. ठीक है, so I am telling you in total how many number of balls of which color it is there. For example, here we have total 28 black balls. B for black, huh? Then we have 31 green colored ball. ठीक है, then I have 11 white colored ball. ठीक है, then I have yellow colored ball, that is 9. 9 balls are of yellow color. Okay, so this bag contains 4 kinds of ball. Some are of black color, some are of green color, some are of white color, and some are of yellow color. Now I want one by one, you have to, what you are doing, you are just putting your hand inside this bag randomly and you are picking out one ball at a time. आप एक बार में एक बॉल निकालते हो randomly. I want that ball should be of black color. What is the probability of that? If I want the ball should be of green color, what is the probability of green colored ball? If you want yellow color to be picked up, what is the probability of that yellow colored ball to be picked up? And if you don't want yellow or all these colors, you only want white color, so what is the probability of getting that white ball? Please use your chat box to reply. Let's see how this question to be solved. So here, if you will see, the first question is asking from us, what is the probability of getting a black ball to be picked up? So in that situation, you are knowing total black ball इसमें है कितनी? हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल है 28, मतलब हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई 28. हमें चाहिए 28 बॉल में से कोई भी एक ब्लैक बॉल चल जाएगी. ठीक है, देन टोटल बॉल्स, पहले तो ये पता लगाए कि पूरी के पूरे बैग में टोटल है कितनी बॉल. तो जब हमने टोटल इसको बॉल को ऐड किया तो हमें टोटल 79 बॉल्स नजर आई. So the first answer will be 28 upon 79. Now second one, you have to pick up one more ball which should be what was the color? Green in color, no? So 31. So 31 balls were green. So 31 upon 79 will be the situation for green ball. Now not green, we want now yellow color. So yeah, total yellow balls are 9 here. So here it will be 9 upon total balls were 79. So 9 upon 79. ठीक है. Now last but not the least, that is white ball. So white balls are 11. So it would be 11. Total balls were 79. So this will be 79. Now you know, अगर आप इन चारों को ऐड करोगे, चारों के चारों ब्लैक, ग्रीन, येलो, व्हाइट,
तो जब हम सारा टोटल करेंगे बेटा तो यू विल गेट इट 79/79, दैट विल बी, ठीक है। सो एनसीईआरटी exercise 5.3 question number 2, it is telling when you throw a die, list the outcome of an event of getting. सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें टोटल आउटकम मिलते हैं कौन कौन से। वी कैन गेट 1 2 3 4 5 और 6, हमें इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर मिल सकता है। so we have total 6 outcomes. Now first question, it is telling what is the probability of getting a prime number. You can get a prime number in that case. तो सबसे पहली वाली कंडीशन में हमको चाहिए एक प्राइम नंबर। तो सबसे पहले चेक करें प्राइम नंबर है कितने हमारे पास। वी कैन हैव 2 इन प्राइम नंबर, वी कैन हैव 3 in prime number, we can have 5 in prime numbers. So you are knowing if you talk about prime numbers, we have total 3 prime numbers. So total 3 upon 6, because we have total 6 outcomes. So the answer can be 1/2. This is the first answer. Alfred, we will not write 1/3/6 beta, we will write 1/2 only. ठीक है, हमेशा we write answer in the simplest form. Now second condition comes, what is the probability of not getting a prime number. हमें prime number नहीं मिलना। Ma'am, same. Absolutely, it will be same answer. Yes. Ma'am, it is only telling list the outcomes, not a probability of outcomes. कोई बात नहीं ना, तो we are doing it उससे ज्यादा बढ़ करके। सॉल्विंग तो वही प्रोसेस करनी पड़ रही है ना। इट इज टेलिंग हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आउटकम निकालना तो और भी इजी है। आंसर कैन बी 2 3 5, बट हम लोग उससे स्टेप आगे कर लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में उससे ज्यादा टफ कुछ दिया नहीं है ना। तो बेटर अगर हम आउटकम निकाल रहे हैं तो सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल के चलते हैं। ठीक है, आई रेड दैट इट वाज शोइंग ओनली आउटकम, बट आई एम टीचिंग इट टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर than 5. The number should be greater than 5. So greater than 5 हमारे पास केवल एक ही नंबर है, that is 6. So here it can be, that is one number only, and out of 6. Now moving on, the last question, a number not 6, it should not be 6. तो 6 ना होना मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब 5 नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। So it will be 5 upon 6, and now you can see 6 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दोनों को ऐड करो 6/6 आएगा,